Allah. ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से हमने काफी वेट किया, सो वी शुड स्टार्ट. Am I audible? Yes, sir. Okay, so language, initially it is planned in English. If you are comfortable with English, we will continue it in English. Otherwise, we can use bilingual or in Urdu as well. So it's up to you. Fine, it's me. Okay, anyhow, thank you. So Urdu is okay, sir. Urdu. mix चलाते हैं. Okay, fine. So we are here. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohsin Jameel, and I am 37 years old. And currently I am working as National HSC Manager of Nokia Networks Pakistan, and I am pursuing EHS MPhil in EHS Management from Superior University. I am writing my thesis nowadays, and I have 17 years of experience in the field in different organizations on different designations in different areas of world and Pakistan as well. So we are today for the environmental management system training session. We will discuss what actually environment management system is. Definitely we will focus on ISO 14001. Then will we touch the environment policy. Then we will give a brief touch to environment laws and regulations. हम बात करेंगे कि environment management system क्या होता है, policy क्या होती है, कुछ touch उसको देंगे, laws क्यों बनते हैं या कैसे हो सकते हैं और regulations क्या होती हैं, उस पर कुछ बात करेंगे. अगर कोई बंदा ऐसा ज्वाइन करता है who cannot understand Urdu, please let me know. Please keep an eye on the audience. If all are the person who can understand Urdu, it's totally fine. Otherwise, we have to switch to English as well. So no problem for that at my end at least. So what is an environment management system? So the definition is an environmental management system brings together the people, policies, plans, review mechanism, and procedures used to manage environmental issues at a facility or in an organization. So it depends. मतलब इन सब चीज़ों को, लोगों को, जो पॉलिसीज बनाई गई उनको, जो प्लान्स बनाए गए उन सबको इकट्ठा जोड़कर कुछ ऐसा सारा कुछ मिला के अगर जब हम इन्वायरमेंट को जो है ना मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसको साफ सुथरा रखें, वो आप किसी फैसिलिटी पे कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो ये जब आप ये अमल कर रहे होते हैं टुगेदर, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम.
So ISO 14001 is also an international system for the certification of users. मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना होता है कि दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, दे डोंट वांट टू, वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, वो इन्वायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो वो क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेशन लेते हैं एज एन एविडेंस। जैसे लाइक अगर आई वांट टू से दैट आई एम ग्रेड आयोश में graduate member of IOSH, so I will have to present the certificate that this is the certificate, it shows that I am the graduate member of IOSH. इसी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन जब कहती है कि वी आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस, वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व एनवायरमेंट, वी आर नॉट डैमेजिंग एनवायरमेंट, then they have to show the certificate that we are ISO 14001 14001 certified. So 14,000 is a family, इसके अंदर पांच एक पूरा खानदान है 14,000 का, उसके अंदर 5 सर्टिफिकेशन शायद वो आगे आएंगी भी इंशाल्लाह ताला। तो सिस्टम के अंदर क्या है कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड दिया जाता है, एनवायरमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे बात की जाती है, लेबलिंग स्टैंडर्ड पे बात की जाती है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पे बात की जाती है, लाइफ साइकिल्स ऑफ एनालिसिस स्टैंडर्ड्स पे बात होती है। ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। Several of the ISO 14000 standards refer to the previous mentioned procedures and analytical tools. The 5 group of environmental standards governed by the ISO 14001 series are, यानी कि ये जो नीचे लिखे हुए हैं 5, ये ISO 14001 एक फैमिली है, ये 5 उसके मेंबर हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉस्ट पाकिस्तान में एशियन कंट्रीज में होती है ना कि ये अराई हैं, ये जट हैं, ऐसे ही एक फैमिली है, उसका नाम है आईएसओ 14000, और उस 14000 फैमिली के 5 मेंबर हैं, जिसमें से एक है 14001 जिसे हम ईएमएस कहते हैं, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 1410 है, 1410 से 1412 है, ये गाइडलाइंस हैं फॉर एनवायरमेंट ऑडिटिंग के लिए। 1420 से 1424 तक एनवायरमेंटल लेबल्स पे बात होती है। आईएसओ 031 जो है वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे बात करता है, उसको एवेल्युएट करता है, गाइडलाइंस को देखता है। और एनवायरमेंट आईएसओ 14040 टू 14043 जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ असेसमेंट पर रहता है। तो हमारा जो आज का फोकस होगा वो 14001 पे रहने वाला है, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मेरे बोलने की स्पीड पर या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर the platform is open to, you can stop me, you can ask that please slow down, या आप मुझे जो भी आपके पास कुछ कोई इन्वायरमेंट आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई सजेशन है, फॉरम इज ओपन फॉर यू, आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं और बोल सकते हैं प्लीज। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप रोकेंगे, मुझे फील होगा कि लोग मेरे साथ ही थे, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि वो घंटा डेढ़ बोलने के लिए हम ही रह जाते हैं। Anyhow, so the first question is, like this is like a fashion nowadays. Like everyone want to be ISO certified. ISO 9001, 14001, 45001, blah 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 blah. But actually, first of all, we should ask the question: does your organization need an EMS, mean environment management system? भाई आपकी organization को चाहिए भी है, ये बस आपको शौक पैदा हो गया? So well, ask yourself the following questions. तो नीचे कुछ questions लिखे गए हैं, इन क्वेश्चंस को पूछें कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर लोग का कानून जो है ना उसके कुछ लॉज हैं। जैसे वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, तो मैंने एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है लॉज का, एचएस लॉज का ना, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे प्रोविंशियल लॉज भी हैं इन्वायरमेंट के, और एक फेडरल लॉ भी है। फेडरल लॉ फेडरल टेरिटरी पे रखता है, और प्रोविंशियल लॉज हर प्रोविंस के अपने अपने 18 अमेंडमेंट के बाद। तो क्या है कि अगर आपको पाकिस्तान में किसी जगह पर काम करना है तो इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, यू हैव टू कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वाकई कोई मसला है, आप जहाँ काम करें वहाँ कोई लॉ ऐसा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, आर यू लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव योर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर वाला खत्म हो गया, ऊपर वाले पे तो ये था कि आपको जरूरत है या नहीं है। अब नीचे वाला भाई जो वो जरूरत की बात नहीं कर रहा, वो आपके शौक की बात कर रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, आप इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करें, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाएं, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन बनाएं, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ साइकिल पे जाना चाहते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका क्या शौक है ये, यानी ऊपर मजबूरी थी, नीचे शौक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल अफेयर्स आर सिग्निफिकेंट लायबिलिटी। नहीं, आप कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं चलाए खड़े हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का काम तो नहीं कि जिससे कुछ खास आपके ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जैसे
इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान, क्योंकि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई विल बी रेफरिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें उनको जोड़ रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ। जो भट्टा चला रहा है ना बंदा, उसके दिमाग में ये बात ही नहीं है जवान के कि मैं इन्वायरमेंट को डैमेज भी कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ही इज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। तो उसके ऊपर लायबिलिटी है भाई, सिग्निफिकेंट लायबिलिटी, कि भाई यू आर डूइंग दिस हेल, यू आर डैमेजिंग इट विद, मतलब कोल्ड ब्लडेड काइंड ऑफ डैमेज है जो वो कर रहे हैं। बट स्टिल उनको लायबिलिटी फील, पर अगर आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझदार हैं, तो आपको फील होना चाहिए यार मेरी जिम्मेदारी है। तीसरी बात आ गई, डज अ लैक ऑफ टाइम और रिसोर्सेज प्रिवेंट योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग इट्स एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस इफेक्टिवली। इन्हें होता क्या है कि अगर सिस्टम, जब आप मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देता है, आप उसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाते हैं कंप्लायंस का। तो आप सोच रहे हैं कि यार इस वक्त तक जो है ना, मतलब डिपार्टमेंट मैंने बनाया नहीं है, और मेरे पास ना इतना टाइम ही है कि मैं कंपनी का अफेयर्स चलाऊंगा या एनवायरनमेंट को देखता रहूंगा। तो आप सोच रहे हैं कि यार कुछ चीज़ मुझे लिमिटेड लिमिटेड जो ना लिमिटेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। तो हम इसकी इफेक्टिवनेस के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं एक स्टैंडर्ड अपनी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। ये क्वेश्चन आप पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि भजन हाँ मैं चाहता हूँ पर हो नहीं पा रहा है, तो आप फिर 14001 को परसू करें। इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट गोल्स एंड अदर गोल्स अनक्लियर। अब मसला ये है कि कुछ जैसे मैं नोकिया में जॉब करता हूँ, तो मैं कल उसकी एक प्रेजेंटेशन बना रहा था। हमारी एक स्टेयर को होगी जो टेलीनॉर के साथ होती है, तो उसमें हमें उनको दिखाना है कि नोकिया के क्या ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट रिलेटेड। तो उसमें मैंने देखा था कि बाय 2030 नोकिया का गोल है कि 50% जो उनका कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको वो रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अब ये आपके मतलब ये आपका गोल है। और दूसरे जो गोल्स हो सकते हैं, जैसे लोगों ने 2015 के अंदर 2030 एजेंडा पे साइन कर दिए हुए ईएसजी के ऊपर, अब वो अलाइन हो रहे हैं या आपस में उलझ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको अलाइन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ जाती है। इफ यू आंसर्ड yes to one or more of the above questions and EMS can help your organization। अब जो ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से अगर 2 या 1 या इससे ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर आपका आंसर यस है कि आप चाहते हैं, आपकी मजबूरी है, आपका शौक है, आपकी जिम्मेदारी है, या आपको कहीं हेल्प चाहिए, then you should go for ISO 14001 and environment management system। एक दफा ना करके मुझे बता दें कि एम आई ऑडिबल स्टिल? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो की ईएमएस, ईएमएस का मतलब होगा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। की का मतलब होगा खास, बेनिफिट्स का मतलब फायदे। तो नीचे जो लिस्ट डाउन किए गए हैं 11, ये बेनिफिट्स हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, वो आप जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी लेकर आता है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। रिड्यूस्ड लायबिलिटी, जब आप उसकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, तो आपकी जो जिम्मेदारी हैं वो हल्की हो जाती हैं, आपके ऊपर लांझे कम हो जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस हो सकता है। देखिए लोग शऊर आ रहे हैं ना, मतलब लोग पहले आज से अगर आप 15 साल पीछे जाते हैं, बल्कि मुझे अगर जस्ट मैं अपने आप कोट करूं, तो 6 7 8 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या बुलाए। बस मुझे लगता था कि बस ना चीजें बेचने के लिए लोग आईएसओ लिख देते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। बट अब मुझे पता है कि यार एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, उससे असर। अब मैं परसों पिंडी के अंदर जो था, इतनी बारिश हुई है कि पिंडी मरी रोड के ऊपर 3 3 इंच बर्फ पड़ी हुई थी। मतलब वो चांदनी चौक से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का पैच था। आई बस शौक है, मतलब पिंडी के अंदर बर्फबारी का क्या तुक बनता है, पर इट वाज देयर। और उससे दुखी की बात ये कि पिछले 3 महीने में बारिश ही नहीं हुई। तो ये इफेक्ट्स हैं जो हमने, मतलब इतना कार्बन एमिशन डाल डाल के हवा, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लें, इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे दें, वट एवर यू वांट टू से, यू नेम इट। बट द प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर इशू हो गया। तो अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे होगा? जब आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे होंगे, तो जो लोग कॉन्शियस हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आपको प्रेफर करेंगे, वो आपके साथ लॉयल होंगे, वो आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको प्रेफर करेंगे। तो आपके पास क्या होगा? कम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। आपको कस्टमर, आपको इन्वेस्टर जो है वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि बैंक आपकी पॉलिसी अच्छी है, बैंक आपको लोन कम पैसों पे देगा, आपके इन्वेस्टर्स हैप्पीली इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाएगा। इंप्रूव कंप्लायंस, लीगल गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। रिड्यूस कॉस्ट, डेफिनेटली आपका जो मतलब हो सकता है बैंक आपको लेस उसके पे इंटरेस्ट पे पैसे दे दे, आपके इन्वेस्टर्स आपको कम जो है ना प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपके साथ सपोर्ट करें, आपके साथ लोग लॉयल हो जाएं। तो फ्यूर एक्सीडेंट्स, डेफिनेटली फ्यूर होंगे। एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होगी, डेफिनेटली। अगर आप स्टैंडर्ड ले कहते हैं, स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि भाई एम्प्लॉयज इन्वॉल्व करो। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज, डेफिनेटली जब आपके डब्बे पे लिखा होगा कि वी आर ISO 14001 सर्टिफाइड एंड वी हैव इनिशिएटेड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कैंपेन्स टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट,
तो वो होगा, आप कस्टमर आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेगा कि बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मोर फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स होंगी और मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होंगी डेफिनेटली। नेक्स्ट क्या है कि एन इफेक्टिव ईएमएस मेक्स good sense whether your organization is in the public or private sector by helping to identify the causes of environmental problems and then eliminating them, and EMS can help you save money. देखिए अगर हम मैं फिर अगेन आई एम बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई विल बी रेफरिंग मेनी थिंग्स टू पाकिस्तान, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ईएमएस को इफेक्टिव के अंदर इस तरीके से जा सकती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पब्लिक हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं। एक इदारा तो इदारा ही होता है। अब वो अगर उसे कोई गवर्नमेंट कोई मुल्क की नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको रन करी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आप सोचते हैं कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ। तो अगर आप उसके लिए कोई अच्छा प्लान तैयार करके उसकी तरफ चले जाते हैं, तो डेफ़िनिटली यू विल बी सेविंग मनी, मगर इन अ लॉन्ग रन। जैसे अभी मैं अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवा देता हूँ, मुझे 8 केवीए का सिस्टम लगाना है, तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 1 मिलियन। मगर 1 मिलियन जो है ना, वो इतनी जल्दी तो नहीं होगा रिकवर होगा। इट विल मुझे लगेगा यार बिल तो इतना नहीं आना था, मैंने इतने पैसे लगा दिए, बट इन अ लॉन्ग रन जब मैं उसकी लाइफ देखता हूँ पैनल की, 25 साल लाइफ है, तो आई थिंक 5-6 साल में जो मैंने पैसे लगाए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, 7 साल में, 8 साल में, फिर उसके बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो आप पैसे सेव करेंगे, बट इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट। सो नेक्स्ट थिंग इज थिंक ऑफ इट इन दिस वे। कहता जी इसको इस तरीके से सोचें, इज इट बेटर टू मेक प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड अ सर्विस राइट द फर्स्ट टाइम और टू फिक्स इट लेटर। अब देखें, वो ये चाह पूछ रहा है कि भाईजान सोचें जस्ट एक दफा कि पहले किसी चीज को खराब करके सही कर लेते हैं या पहली दफा ही उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ये आपको सोचना है। इज इट चीपर टू प्रिवेंट अ स्पिल इन द फर्स्ट प्लेस और टू क्लीन इट अप आफ्टरवर्ड। यानी कि आप क्या करते हैं कि बंदे को, जो बंदा तेल भर के लाता है, उसको इतनी हैसल में डाल रखते हैं कि वो जब जाता है उससे थोड़ा बहुत तेल गिरता है। अब और उसको तेल को साफ करने के लिए आपने एक बंदा रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उस बंदे को 5 सेकंड एक्स्ट्रा देने बारे में है कि वो तेल स्पिल ना करे, वो तसल्ली से वापस आ जाए, या उस तेल की सफाई के लिए एक बंदा रखना बारे में। सो इट्स योर कॉल, बट यू हैव टू डिसाइड इट। इज इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट पोल्यूशन और टू मैनेज इट आफ्टर इट हैज बीन जनरेटेड। मतलब आप देखें, जब आप पोल्यूशन फैला देते हैं तो उसको रेक्टिफाई करना तो बहुत खतरनाक मुश्किल सा काम है ना। आपने जब हवा को गंदा कर लिया, तो कार्बन, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो हवा में से कार्बन जो है उसको कलेक्ट कर रही हैं, तो उसको मतलब स्टोर किया जा रहा है। बट स्टिल, क्या इससे बेहतर नहीं है कि हम हवा को पोल्यूट करते ही नहीं? वो ज्यादा बेहतर है, वो अच्छी बात है। लाइक एक मैंने प्रोवर्ब बहुत बचपन से, मतलब कोई 8 क्लास से मुझे याद है, अराउंड 22 ईयर से, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंट इलाज जो है, परहेज इलाज से बेहतर होता है। तो परहेज करें, ना कि आप इलाज पे फोकस कर देंगे। ठीक है यार, मैं धुआं छोड़ता रहूंगा, मगर बाद में मैं 10 दरख्त लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट भाई धुआं छोड़ना ही बंद कर दें ताकि जिंदगी आसान हो जाए। ओके, सम रीजन व्हाई इम्प्लीमेंटेड इन ईएमएस। आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। विदाउट रीजन इफ यू आर डूइंग समथिंग, इट विल नॉट बी अ बेनिफिशियल फॉर यू और फॉर द एनवायरनमेंट और फॉर द पब्लिक। इट विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू एनीथिंग। मगर अगर आपके पास लॉजिकल रीजन है, तो फिर आपको उसके लिए जाना चाहिए, उसके फायदे भी होंगे। इवेंचुअली यहाँ पर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। सबसे पहले क्या होगा कि इम्प्रूव कंप्लायंस परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट बड़ी खुश होगी यार, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस होगा। जो जैसे नोकिया की अगर बात करते हैं, मतलब मैं काफ़ी दफ़ा नोकिया का नाम ले चुका हूँ। मैं नोकिया की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ ना इस प्लेटफॉर्म पे हम कोई चीज़ बेचने के लिए, बट स्टिल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरी लॉयल्टी है उनके साथ और उनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस पर बहुत कॉन्शियस है कि भाई मैनेजमेंट के साथ आप जो हैं, आप इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ पैसे लगा रहे हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज किए जा रहे हैं। सो ये बात है। नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज एफिशिएंसी। डेफिनेटली, जैसे अगर आप सोलर पैनल पे चले जाते हैं, तो आपको रोज पेट्रोल नहीं भरना है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगी, उसमें जनरेटर की मैनेज वो नहीं आएगी। अगर आप वापडा पे फंसे हुए हैं, तो वापडा आगे चलेगी, हर महीने बिल आएगा, उसकी मेंटेनेंस आएगी, ट्रांसफार्मर का ये हो गया, उसको जिस तरह चला गया, तो ये सब लाने खत्म हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अनइंटरप्टेड सप्लाई आ रही होगी, ग्रीन आ रही होगी, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी, तो आप उसको चलाते रहेंगे। पब्लिक इमेज कॉर्नर्स बेहतर हो जाएगा, ग्रोथ मैनेजमेंट हो जाएगी, हम बात कर चुके हैं। डिजायर टू बी सीन एज लीडर एंड इनोवेटर। मार्केट में आपका नाम होगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यार, इनको बड़ा फिक्र है एनवायरनमेंट का, एक रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। हो सो कॉस्ट होगी तो बेनिफिट होगा। तो हम सीबीए की बात करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं कि कॉस्ट क्या हो सकती है और उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं।
सो कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो इंटरनल कॉस्ट क्या होगी कि आपको बंदे रखने पड़ेंगे। अगर आपको ईएमएस चलाना है तो कोई मतलब आपको एनवायरमेंटलिस्ट भर्ती करना पड़ेगा जिसको कुछ आता भी हो, सिर्फ डिग्री नहीं हो, कुछ आता भी हो। फिर उसका टाइम लगेगा, फिर वो क्या करेगा, अल्लाह का बंदा जब भर्ती हो जाएगा फिर वो कहेगा जनाब आप सबको भी बताना है, आप सब बैठे हैं मेरे साथ सेशन करें, आपको लोग एंगेज करने पड़ेंगे। तो इंटरनल लेवल कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज लेके देने पड़ेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट होगी, डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट होगी, कंसल्टेंट ऑनबोर्ड करना पड़ेगा 50, और एक्सटर्नल कॉस्ट भी होगी, पोटेंशियल कंसल्टिंग असिस्टेंट लेने पड़ेंगे, आउटसाइड ट्रेनर आपको पकड़ना पड़ सकता है। तो ये सारी कॉस्ट है जो इंटरनल और एक्सटर्नल होगी। अब उसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। सो बेनिफिट्स कैन इंक्लूड इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। आपकी अगेन हम जो बात कर चुके हैं कि आपको कस्टमर मिल सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी होगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको तब मिलती हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना चाहिए कि देखो भाई अगर मैं 5 लाख खर्च कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। अगर तो 5 लाख खर्च करके आपको 3 लाख मिल रहा है तो फिर केस फेलियर की तरफ चला गया, फिर तो कोई फायदा नहीं। बट अगर 5 लाख लगा के आपको 7 लाख बच रहा है तो इट मीन्स केस पॉजिटिव है, जाने की जरूरत है। सो की एलिमेंट्स के ऊपर बात आ गई कि की एलिमेंट्स ऑफ एन ईएमएस। स्नैपशॉट, एक छोटी सी तस्वीर में कोशिश की हम आपको दिखा सकें। पॉलिसी देखें, पॉलिसी किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की जड़ है जो आपको कुछ लाइनों में एक सफ़े में ये बताती है कि एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, वो क्या करेगी, कैसे करेगी, और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या, आउटकम क्या होगा, मतलब क्या एक्शंस होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बदले में फिर क्या हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एनवायरमेंट पॉलिसी। डेवलप अ स्टेटमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। यूज द पॉलिसी एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग एंड एक्शन। पॉलिसी में आपको बताना पड़ेगा भाई हम क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आ जाएंगे कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ या ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रही है, अगर वो मतलब कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको डिज़ाइन पे बात करनी है, उसको देखना है कि मैं जो है ना सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जाऊँ, लाइफ साइकिल ज़्यादा होना चाहिए, जो मैं एनवायरनमेंट जो बिल्डिंग बनाऊँ वो ज़्यादा तक बने, काम थोड़ी जगह पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं, उसमें हवा नेचुरल एयर सिस्टम हो ताकि उसमें टेम्परेचर को मेंटेन रहे, हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करनी पड़े, हमें नेचुरल डे सनलाइट लाइट को हम यूज़ कर सकते हों। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स को आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेट करने हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास कोई पाथ ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, तो आप क्या करेंगे, वो रैंडमली बस एक सर्टिफिकेट खरीदेंगे, उसके बाद फाइलों का एक पलंदा बना के किसी सेफ में डाल दिया जाएगा, जो जब दोबारा ऑडिट होगा 2 साल के बाद तब खोलेंगे, अच्छा यार इसमें ये डाल दो, वो डाल दो, फिर बंद हो जाएगा। बट नहीं, एक्चुअली अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, टारगेट्स होंगे और वो डॉक्यूमेंट लाइव होगा, and you have to review it on the different intervals. It could be a quarter, it could be weekly, it could be monthly. It's up to your organization. But होगा तो आप उसे देखेंगे, और अगर कोई टारगेट ही नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट लेना था, किसी को पैसे दे के ले लिया, तो फिर कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट जो था एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, आपको प्लान एक्शंस नेसेसरी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, टारगेट सेट किए, तो आपको उनको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपको अच्छा प्लान तैयार करना है। स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको बताना पड़ेगा भाई कि कौन क्या करेगा। मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन ही नहीं की गई हैं तो पूछेंगे किसे, अकाउंटेबल कौन होगा। तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसको अथॉरिटी देनी है, देन अकाउंटेबिलिटी पे जाना है। सो वी हैव टू सेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव टू प्रोवाइड द अथॉरिटी, देन वी गो शुड गो फॉर द अकाउंटेबिलिटी। फिर हमें पूछना है भाई तुम्हें पैसे दिए थे, बंदे दिए थे, सिस्टम दिया था, तो तुमने काम भी दिया था, क्या किया उसके साथ, कुछ आउटकम भी दिखाओ हमें। अगली चीज हमें देखेंगे ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस। देखिए, एक एनवायरमेंटलिस्ट आपने भर्ती करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन का मसला हल नहीं हो जाता। जब तक सब लोग, वो भले सीईओ साहब हों, वो आपके हों वर्कर्स हों, वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सब लोग जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या है, आपको ट्रेनिंग्स करवानी पड़ेंगी, उनको अवेयरनेस दिलवानी पड़ेगी, लोगों का नॉलेज इन्हांस करके उनको कॉम्पिटेंस दिलवानी। कॉम्पिटेंस की जब बात करते हैं तो कॉम्पिटेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं इसके के लिए कहता हूँ कि एक वर्ड याद करें, केट, KATE। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रेनिंग एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। अगर किसी बंदे के पास रेलिवेंट नॉलेज, अप्रोप्रिएट जो है उसके पास एबिलिटी, मतलब नॉलेज है तो उसके पास एबिलिटी तो इम्प्लीमेंटेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट ट्रेनिंग भी है, और उसका एक्सपीरियंस भी है, तो उसको आप कॉम्पिटेंट कह सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट करने के लिए, कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए आपको उसको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, उसको अवेयरनेस दिलवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने सारा एक प्लान तैयार किया कि नहीं किया।
उसके बाद कम्युनिकेशन की बात आ जाती है कि देखें आपने पॉलिसियां बना दी, प्रोसीजर्स बना के फलंदा तो लिख दिया, बट अगर उसको फ्लोट ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं आपने क्या बनाया, तो एस्टेब्लिश प्रोसेस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑन एनवायरमेंट मैनेजमेंट इश्यूज। आपको बोलना है भाई, यू हैव टू स्पीक अप। आपको बताना है लोगों को कि भाई ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, ये हाल हैं जो हम कर रहे हैं और स्टिल अब ये हो रहा है। कम्युनिकेशन इज द क्या कह सकता हूँ कम्युनिकेशन को मैं, कम्युनिकेशन जो है वो एक की पॉइंट है एक्चुअली। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं है वट एवर यू आर डूइंग, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कम्युनिकेशन को पे बहुत खास एम्फोसिस रखना पड़ेगा हमें। हाँ, सेंटर ऑफ एम्फोसिस मैं कह सकता हूँ। ओके, ईएमएस डॉक्यूमेंटेशन देखें आपने, मतलब सोचने से हवा में कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाने ही पड़ेंगे इवेंचुअली। आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी बात है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर दिया है, बट स्टिल वी नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन योर ईएमएस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ताकि किसी को दिखाने पड़े तो आपके पास तो होना। फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे चल रहे हो, किसी को पता ही ना हो किसने लिखा था, कब लिखा था, क्यों लिखा था, रिव्यू हुआ नहीं हुआ। So ensure effective management of the procedures and other system documents। ऑपरेशनल कंट्रोल्स पे देखें कि आप देखेंगे जब आपने डॉक्यूमेंट बना दिए, पुलिस पॉलिसीज बना दी, हर चीज़ तैयार कर दी है, उसकी कहीं इंप्लीमेंटेशन भी हो रही है कि नहीं हो रही। ऑपरेशन को भी देखेंगे वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रहा है कि या आपने डॉक्यूमेंट जो थे वो इस तरफ एक तरफ बना दिए हैं और पुलिसियाँ आपकी दूसरी तरफ को चली गई हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको देखना है कि जो ऑपरेशन और डॉक्यूमेंट है वो कैसा चल रहा है। आइडेंटिफाई, प्लान एंड मैनेज योर ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज इन लाइन विद योर पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। जो मैंने उर्दू में कहा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो व्हाट विल हैपन। जैसे हम अगर यहाँ पे जो ऑपरेशन रन कर रहे हैं, हम टेलीकॉम ऑपरेशन रन करते हैं, तो हमारी जो फ्यूलिंग की टीम्स मोबिलाइज हो रही होती है, उनके पास स्पिल किट होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी वजह से स्पिल हो जाती है, आपका फ्यूल गिर जाता है, तो आपको इस तरीके से उसको पकड़ना है, ये किट इस तरीके से आप वहाँ पे यूज करेंगे तो आप इसको जल्दी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, वो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट पे जाएंगे। व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट अचीव। देखें अगर आप नाप नहीं सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा, आपने एनवायरनमेंट बना दिया, पुलिसिंग बना दी, ट्रेनिंग करवा दी, लोगों की कॉम्पिटेंस सीधी कर दी, बट अब देखना है कि कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कन्फॉर्मेंसीज एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। देखिए गलतियां तो रहती हैं ना, परफेक्शन तो अचीव नहीं हो सकती। तो उसके अंदर क्या है कि उनको आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें, उनको एडमिट करेंगे हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, और उनको प्रिवेंट करें दोबारा रिकरेंस से कि दोबारा ना हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, यानी हम इसे बोलते हैं कैपा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। देन रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए डेफिनेटली कि आपने क्या किया, कब किया, कैसे किया। ऑडिट्स होंगे देखने के लिए क्या हालात जो हमने सोचे थे वैसे ही हैं या पता नहीं क्या बन गया। मैनेजमेंट रिव्यू चेक करेगा कि जनाब पैसे लगा दिए, पॉलिसी बना दी, लोगों को ट्रेनिंग दिलवा दी, ऑपरेशन इन लाइन कर दिया, ऑडिट कर लिया, अब रिजल्ट क्या है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, या जो मौजूद है उसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, या हम पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं इसको ख़त्म कर देते हैं। ये सब कुछ पता चलेगा मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर, उससे उसके अलावा मुश्किल है। एनी ये स्नैपशॉट था, काफ़ी थोड़ा बताना ज़रूरी था ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एनी नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट पॉलिसी कहता जी, पॉलिसी जो है, पॉलिसी इज टॉप मैनेजमेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कमिटमेंट टू द एनवायरनमेंट। द पॉलिसी शुड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर योर ईएमएस एंड प्रोवाइड अ यूनिफाइंग विजन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ही जैसे ना वो आप एक स्लोगन बना देते हैं ना, तो पॉलिसी एनवायरनमेंट की जो मैनेजमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से ऐलान होता है, अल्लाह ऐलान, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी। वो एक अपना वादा करते हैं कि हम बीइंग एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को बिल्कुल डैमेज नहीं करना चाहते, हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे, कम से कम कार्बन एमिशन पर जाएंगे। फिर उसमें मजीद वो बताते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे और उसके बाद क्या असरात होंगे, ये सब कुछ पॉलिसी के अंदर आप बता देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, डिफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग ISO 1400। उसकी ISO 14001 बताती है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होते हैं। वो बताती है कि एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कैन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, वो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम जैसे ऑपरेशन रन कर रहे हैं टेलीनॉर का, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा काम जो है वो है मोबिलाइजेशन। क्योंकि अब 14,000 टावर लगे हुए हैं, उनके ऊपर टीमों को मोबिलाइज होना है, तो उसके लिए क्या गाड़ी यूज होती है, तो गाड़ी के अंदर फ्यूल जलता है। उसके बाद साइडों पर जनरेटर्स पड़े हुए हैं, वो जनरेटर जो है उनके अंदर डीजल यूज होता है। उसके बाद वो जनरेटर चलते हैं, शोर पैदा करते हैं, उस शोर को देखना है।
उसके बाद उस जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसके बाद उसके एमिशन टेस्टिंग करनी पड़ती है कि उसमें क्या हालात हैं गैस के, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूल कैसा यूज़ हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है आपको देखना पड़ता है कि हम एनवायरनमेंट से कहाँ-कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो पॉजिटिवली कर रहे हैं और नेगेटिवली कर रहे हैं वो बाद में देखेंगे। बट इंटरेक्ट कहाँ कर रहे हैं सबसे पहले उसको पकड़ना ज़रूरी है। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट की बात आ गई। पहले हमने उसका एस्पेक्ट देखा है कि हम यहाँ-यहाँ एनवायरनमेंट को टच कर रहे हैं। जैसे नोकिया टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनिटली उनको जब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हो सकता है पीछे फॉसिल फ्यूल चल रहा हो, पेट्रोल से चल रही हो, कोयले से बन रही हो, किससे बन रही है, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद उनको उसे शिपमेंट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट के दायरा-कार में आती हैं। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। एनी चेंज टू द एनवायरनमेंट वेदर adverse or beneficial wholly to or partially resulting from an organization's activities, products or services। अब हमने अगली पहले ऊपर बात की कि देखें जी हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ भेज रहे हैं, वहाँ पर तेल डाल रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, तो यहाँ-यहाँ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि वो जो गाड़ियों से इमिशन निकला है वो एनवायरनमेंट को डैमेज कितना कर रहा है, वो जो जनरेटर से शोर निकल रहा है वो लोगों का कितना सुकून बर्बाद कर रहा है, वो जो जनरेटर से धुआं निकला है वो कितना शोर बर्बाद कर रहा है, वो जो ऊपर हमने लगाई हुई है एंटीने इक्विपमेंट लगा हुआ है उनसे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो रेज निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज को रेज हैं वो कितना लोगों का को तंग कर रही हैं, उससे क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट और इम्पैक्ट में फ़र्क है। एस्पेक्ट क्या है, कहाँ-कहाँ हो रहा है और इम्पैक्ट के कैसे हो रहा है, उसको देखेंगे। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खुद सोचेंगे। आइडेंटिफाई एक्सपेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। तो आइडेंटिफाई एक्सपेक्ट्स के बाद है कि व्हिच ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट इन अ वे दे कुड रिजल्ट और हैज रिजल्ट इन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। भाईजान पूछ लेंगे कि भाईजान कौन-कौन सी एक्टिविटीयां फटा डाल रही हैं। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल एनर्जी सोर्स एंड अदर रिसोर्सेज डू वी यूज इन आवर वर्क। हम भाई क्या क्या चला रहे हैं, डीजल चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, कोयला चला रहे हैं, काला तेल चला रहे हैं, चिट्टा तेल चला रहे हैं, वो देखेंगे। डू वी जनरेट वेस्ट, स्क्रैप और ऑफ spec material? If so, does the treatment of disposal of these materials have potential environmental impact? देखें ना कितना सीरियस पॉइंट है कि हम लोगों जो है ना वो उसको सोचते नहीं, बस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, मगर उस चीज को बनाने के बाद जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस पर बात ही कोई नहीं आ रही। वेस्ट जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक्चुअली वेस्ट का प्रोड्यूस प्रोड्यूस होना ही एक डिजाइन का फॉल्ट है, ये एक फ्लॉ है, इट्स अ डिजाइन इशू। क्योंकि डिजाइनर ने जब डिजाइन किया उसको सोचना चाहिए था कि भाई मैं वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहता, ऐसा डिजाइन करूंगा जिसकी प्रोडक्शन में वेस्ट होगा ही नहीं, और होगा तो वो कम से कम होगा, और अगर स्टिल होगा तो उस वेस्ट को मैनेज कैसे करना है। अब हॉस्पिटल वैसे तो लोगों के इलाज के लिए बने हुए हैं ना, लोगों का इलाज करते हैं, मगर जो वो वेस्ट जनरेट करते हैं अगर उसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो वो हॉस्पिटल इलाज कम लोगों को कर रहे हैं, उससे बीमार ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है। उसके बाद है विच मेरे ख्याल से लोगों को एक थोड़ा-सा मैं एरो भी यूज़ करता हूँ ताकि वो मेरे साथ रहें। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रिब्यूट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट सर्विसेज कुड रिजल्ट इन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू देयर इंटेंडेड यूज़, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ईटीसी। इसका मतलब ये है कि देखें आपने अब एक मोबाइल बना दिया कंपनी ने, मोबाइल आपके हाथ में दे दिया है। अब आपको सोचना है कि ये मोबाइल कितनी देर तक चल सकता है? चलते हुए इसको कितनी दफ़ा एनर्जी दफ़ा कैसी बैटरी डालेंगे, कितनी दफ़ा चार्ज होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, ये कितने देर चलेगा, और जब ये चलने के काबिल नहीं रहेगा देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा, ये किसी काम आ जाएगा या ज़मीन पे कचरे का हिस्सा बन जाएगा। तो ये सब कुछ आपको सोचना है। डज़ आवर लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। हम मतलब कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट का सत्यानाश करने की कोशिश करी। जैसे आजकल पता नहीं जो किसान होते हैं वो अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, कीड़े मार दवाइयाँ डाल रहे हैं, धड़ाधड़ खादें डाल रहे हैं, मगर परिंदे खत्म हो गए उन दवाइयों की वजह से, स्प्रे की वजह से। पेस्टिसाइड्स डाल के उन्होंने कीड़े तो मारे होंगे एंड उनकी फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ इवन। बट उससे क्या हुआ कि मेरा जो बचपन था उसमें इतने परिंदे होते थे और हम जाल लगा के पकड़ा करते थे सर्दियों में, ठीक है। अब वो परिंदे देखने को भी नहीं मिलते, वो कहाँ चले गए। हमारे इस तरह के कामों ने, पेस्टिसाइड्स ने, खादों ने, केमिकल्स ने उनकी जान ले ली। वो जो कीड़ियाँ सुंडे वगैरह मरते हैं बेचारे, वो उनको खाते हैं इंसेक्ट्स को, और फिर वो बेचारे मर जाते हैं। तो आपको ये सोचना है। नेक्स्ट है विच एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल केमिकल स्टोरेज माइट लीड टू एक्सीडेंट रिलीज। मतलब अगर आपने कोई स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई पेंट रखा हुआ है, डीजल स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, कोई एसिड स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, तो आपको देखना है। उसके बाद एवेल्यूशन इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, आर द इम्पैक्ट एक्चुअल और पोटेंशियल में है भी है और कितना है।
आर द इम्पैक्ट बेनिफिशियल और डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट? आपने कुछ ऐसा स्टोर किया जिससे फायदा हो रहा है या ऐसा रखा हुआ है जिससे कोई धमाका ही होने वाला है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और डिग्री ऑफ दिस इम्पैक्ट्स? अगर कुछ हुआ तो वो कैसा होगा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और लाइकलीहुड ऑफ दिस इम्पैक्ट्स? कितनी कितने चांसेस हैं कि ऐसा कुछ होगा और कब तक हो सकता है या उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड जियोग्राफिक एरिया ऑफ दिस इम्पैक्ट्स? और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो कितने एरिया को कवर करेगा? भोपाल वाला जो इंडिया का इंसिडेंट था, उसके करीब कितनी आबादी जो थी, कितने लोग ऐसे ही आनन-फानन खत्म हो गए थे। तो आपको सोचना पड़ता है कि हम जो ऑपरेशन रन कर रहे हैं, अगर इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग, तो इम्पैक्ट कहाँ तक जाने वाला है? विच पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट माइट बी अफेक्टेड? एयर, वाटर, लैंड, यानी कि अगर आपने कोई अगर गैस एमिशन होता है तो उससे लैंड तो डैमेज शायद नहीं होगी, मगर हवा डैमेज हो जाएगी। और अगर ऑयल स्पिलेज हो जाती है तो उससे शायद एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा, आपकी लैंड जो है ना डैमेज हो जाएगी। हैव यू इंटरेस्टेड हैव योर एवर इंटरेस्टेड पार्टीज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट दीज इम्पैक्ट्स? तो क्या जो पार्टीज हैं उन्होंने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट शो किया है कि भाईजान कुछ बचाने की कोशिश करनी है या नहीं करनी है? लेट्स सी, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एनी हाउ, द लिंक बिटवीन एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट। दो चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी कि एक हमारा एस्पेक्ट है कि हम कहाँ कहाँ एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हम अब उसको आपस में लिंक बना के देते हैं कि इमिशन ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हम कुछ भी पेट्रोल की बात कर लेते हैं, वो भी वोलाटाइल है। तो उससे क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है कि इंक्रीज इन ग्राउंड इंक्रीज, एक मिनट ठहरे, मैं थोड़ा सा कर्सर को पकड़ के लिया, हाँ जी, इंक्रीज इन ग्राउंड लेवल ओजोन, ये फटा हो जाता है हमारे साथ। डिस्चार्ज टू स्ट्रीम, अगर हमको गंदा पानी, जैसे लाहौर का सारा पानी दरिया रावी में डाल दिया हमने, तो वो डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उससे क्या हुआ, जितने भी बेचारे जो आबी मखलूक थी उनका बेड़ा गर्क हो गया। और वो पानी जब जमीन में पेनिट्रेट कर रहा है तो हम पंपों से वापस निकाल के पी भी रहे हैं, तो वो जो गंद हमने एनवायरनमेंट में गिफ्ट किया था वो वापस हमारे गले पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है स्पिल्स एंड लीक्स। अगर ये इम्पैक्ट है तो देन सोयल एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। और अगर आप यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड पेपर, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आप, जो लोगों ने पेपर ज़ाया कर दिया है, तो फिर आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप रिसोर्सेज बचा रहे हैं। आज भी एक मीटिंग थी मेरी सुबह सुबह सप्लायर्स में, मैंने उनको यही कहा कि यार चेक लिस्टें इतनी ना भरो, पेपर भर भर के काले कर करके रखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, कोई डिजिटलाइजेशन कर लो, गूगल फॉर्म वगैरह यूज किया करो, एक तो रिकॉर्ड कीपिंग रहती है, दूसरा पेपर बच जाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा। सम पोटेंशियल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड कैटेगरीज, एयर एमिशन होते हैं, धुआं जो हम छोड़ते हैं, सॉलिड हैजर्ड वेस्ट हो सकते हैं, जैसे हम मोबाइल यूज करके भी फेंकते हैं, ये भी वेस्ट ही है। कंटेमिनेशन ऑफ लैंड हो सकती है, जैसे आपने कोई पेट्रोल वगैरह का टैंकर फाड़ दिया, कोई चीज़ आपने स्पिलेज होगी, एसिड छोड़ दिया, कोई पेंट गिरा दिया ज़मीन पर, तो ये खतरनाक काम है। लोकल इश्यूज हो सकते हैं, लोग मतलब जैसे मैंने आपको बताया जनरेटर का शोर हो सकता है, स्मेल हो सकती है। जैसे मैं इधर 2013 में एक कोक के प्लांट पे काम कर रहा था मुल्तान में, तो वहाँ पर जो बनती हैं बनाती हैं ना फैक्ट्रियाँ इसकी फीड, पोल्ट्री फीड, वो शाम को पता नहीं कुछ चीज़ छोड़ते हैं, इतनी गंदी स्मेल निकलती है ना, जीना हराम हो जाता है। डस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक वगैरह, अगर मसला ये है कि अगर 70 बंदे 70 कारों में जा रहे हैं तो वो तो बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं रोड का, और अगर 70 बंदे एक बस में बैठ के जा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वो सर वाटर डिस्चार्ज, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे पेंटिंग, कपड़ा रंग रहे हैं, उसको डाई कर रहे हैं, उसमें आप पानी का जो है ना एफिलेंट छोड़ रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। एनर्जी यूज, रॉ मटेरियल पे बात आ जाएगी, हैजर्ड मटेरियल पे बात आ जाएगी, तो आपको ये सब कुछ देखना है। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, मैंने कहा था लीगल पे भी बात करेंगे। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फेडरल रिक्वायरमेंट्स जैसे पाकिस्तान का फेडरल लॉ है, उसके बाद स्टेट एंड लोकल रिक्वायरमेंट, जैसे स्टेट्स हैं हमारे पास, पंजाब है उसका अपना एक लॉ है, सिंध का अपना है, बलोचिस्तान का अपना है, और केपीके का अपना है। स्टैंडर्ड्स इन लोकेशंस वेयर यू सेल प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे अगर आपने कोई चीज़ ईयू भेजनी है, यूरोप में इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी सॉरी, तो आप अगर ISO 14001 सर्टिफाइड नहीं है तो आप नहीं भेज सकते, उसके पास स्टैंप नहीं होगी, वो आपको कभी भी घुसने भी नहीं देंगे। और परमानेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं, कोई कस्टमर ऐसा मिल जाता है कि आपने यूरोप तो नहीं भेजना, मगर एक कस्टमर वहाँ से आया है, वो कहता है जी मैं चीज़ें तब खरीदूंगा जब आप ये करवाएंगे, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसीलिए करवाते हैं क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है, वरना कहाँ करवाते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स माइट इंक्लूड कंपनी स्पेसिफिक कोर्स, यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी टेलीकॉम सेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं थी, मगर क्या है कि टेलनॉर का भी पीछे ग्रुप बैठा हुआ है, नोकिया का भी ग्रुप बैठा हुआ है, अब वो ग्रुप इनके पीछे खड़ा है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करो, तो इनको काम करना पड़ता है, तो वो उनकी कॉर्ड्स होती हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चार्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपने कोई उनकी आप उसके ट्रीटी हैं कि आपने उनके साथ साइन कर लिया है कि हम इस पे अमल करेंगे, तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। अदर इंडस्ट्री कोड्स और प्रोग्राम्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जैसे मैं आईओएस का मेंबर हूं तो मेरे पास सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि मुझे ये सब कुछ करना है। ऐसे जो लोग पीएमपी के होते हैं उनके साथ भी होता है, इसी तरह लोग जो
EU के मेंबर्स हैं या मतलब किसी और भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के या किसी कम्युनिटी के मेंबर हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो उनकी एग्रीमेंट्स हैं, उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स पे बात आएगी घूम फिर के। तो अकॉर्डिंग टू ISO 14001 एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि वो कहते हैं जी ओवरऑल एनवायरमेंटल गोल्स अराइजिंग फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉलिसी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स itself to achieve and which is quantified where practicable। देखिए स्टैंडर्ड जो है ना वो आपको ये नहीं कहता कि आप जो है ना ये कर दें। वो आपसे कहते हैं जी आप अपने सिस्टम, अपने एनवायरनमेंट, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी खुद सेट करें। स्टैंडर्ड आपको खुद से चेक नहीं करने जाता। वो कहते हैं जी पॉलिसी बनाएं, वो आपकी पॉलिसी की बेस पे आपको इंस्पेक्ट करने जाता है कि आपने क्या सेट किया था और क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी अगर एनवायरनमेंट की मेजरमेंट की मैं बात करूं तो हम चेक कर सकते हैं ना कि हम कितनी ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम कितना रिसाइकल्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं। रिसेंटली अराउंड मेरे ख्याल से 2 वीक्स पहले की बात है कि वो नोकिया उसने गैलेक्सी AI लॉन्च किया है सैमसंग ने। तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग की वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो अपने हर एक आइटम के अंदर कुछ ना कुछ रिसाइकल्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ ESG। ये उन्होंने 2030 एजेंडा पे साइन किया हुआ है। वो कार्बन एमिशन को कम करना चाह रहे हैं और वेस्ट को कम करना चाह रहे हैं। तो वो अपनी हर प्रोडक्ट में, वो मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, उसमें कोई ना कोई एक रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये क्वांटिफाइड है। हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितना वेस्ट मटेरियल यूटिलाइज कर लिया, कितना कम वेस्ट जनरेट कर लिया, कितना ग्रीन एनर्जी को यूज कर लिया। तो ये सब क्वांटिफाई हो सकते हैं। कुछ चीजें क्वांटिफाई नहीं हो सकती बट कुछ हो सकती हैं। तो इसलिए इसलिए वर्ड यूज किया है प्रैक्टिसेबल। सेकंड क्या है, एनवायरमेंट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एक थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म होती है, टारगेट्स बड़े ब्रीक ब्रीक के साथ आते हैं। डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती है उसमें, क्वांटिफाइड वेयर प्रैक्टिसेबल अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन टू और पार्ट thereof that arise from the environmental objectives and that need to be set and meet in order to achieve those objectives। तो भाईजान आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट करने हैं और अगर आप उनको चेक कर सकते हैं, जैसे नोकिया का एजेंडा है कि हम 2030 तक 50% कार्बन फुटप्रिंट को कम कर देंगे, कार्बन एमिशन को काबू कर लेंगे, हम इतना वेस्ट जनरेशन कम कर देंगे। तो ये क्या है, क्वांटिफाइड है, उन्होंने लिख के दे दिए कि भाई इतना काम करेंगे। वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखे हुए बट मैं इसको एक्सप्लेन करना मुनासिब समझूंगा। स्मार्ट का मतलब होता है SMART, एस फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हम करने क्या चाह रहे हैं। जैसे लेट से कहते हैं कार्बन एमिशन कम करना चाहते हैं, स्पेसिफिक है, पता चल गया। M फॉर मेजरेबल होना चाहिए कि हम कितना कम करना चाहते हैं। ठीक है। A फॉर अचीवेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कह दूं सुबह 100% कार्बन एमिशन बंद कर देंगे, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अचीवेबल, इट्स इडियटिक इडियोसिटी कि मतलब आप ऐसे मुंह खोल के कुछ भी कह देते हैं। R होता है रियलिस्टिक, मतलब जरूरी है, करना जरूरी है। और T फॉर टाइम बाउंड, ऐसा भी नहीं कि बस भी मैं 50% कार्बन एमिशन कम कर दूंगा, कब तक करूंगा कोई पता नहीं, वो हो सकता है 2095 तक चला जाए। तो आपको ख्याल रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। एनी हाउ, हम आ गए हैं एक चार्ट पर, वो आपको बता रहे हैं कि भाई आप बनाते हैं पहले पॉलिसी। पॉलिसी में आप एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का जिक्र करते हैं, लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स का जिक्र करते हैं, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी उसमें चीज़ें डाल देंगे, हमारा ये ख्याल है भाई। फिर क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं इन सब की तरफ से, आपके एनवायरमेंट एस्पेक्ट आ जाता है, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, आपके स्टेक होल्डर जैसे हमारे पास इन्वेस्टर हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है। फिर आप बनाते हैं कि एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि जनाब आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, आपको फाइनेंस यूज़ करना पड़ता है, आपको ऑपरेशन में उसका ख्याल करना पड़ता है और अदर बिजनेस के साथ कोऑर्डिनेट भी करना। There are no standard environmental objectives that make sense for all organizations। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, एक कंपनी का काम है वो किसी को फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रही है, उसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ और होंगे। और एक और जो कंपनी है वो ईंटें बना रही है, दूसरी कंपनी जो है वो टेलीकॉम का इक्विपमेंट बना रही है, तीसरी वाली जो है वो पेंट बना रही है। तो हर किसी का अपना ऑपरेशन है। हम वन साइज फिट फॉर ऑल वाला तो फार्मूला चला नहीं सकते। देयरफॉर हम ये कहते हैं कि देयर आर नो स्टैंडर्ड्स एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स दैट मेक सेंस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। Then your objectives and targets should reflect what your organization does। आपको बताना है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये करती है इसलिए मेरे ये टारगेट है। हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग एंड व्हाट इट वांट्स टू अचीव, कि भाई आपने जो टारगेट सेट किए थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो कैसा चल रहे हैं और उनके से आप अचीव क्या करना चाहते हैं। मुझे बोलते हुए काफी देर होगी जी, मुझे एक दफा बता दें करके कि एम आई ऑडिबल स्टिल? Yes, sir. ओके।
वैसे कितने लोगों ने ज्वाइन किया हमें आज? हाउ मेनी पीपल आर इन द सेशन? ऐसे ही देखने को दिल कर रहा है, थोड़े से लोग हैं। और ये मतलब सारे लोग, ये एक भाई बटोटा टीवी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता इनको अब बेचारों को उर्दू समझ आ रही हो कि नहीं आ रही है, उर्दू मारे जा रहे हैं। चल, एनी, ओके। तो फैक्टर्स टू कंसीडर इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। जब आप टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू ट्रैक, कॉस्ट टू ट्रैक एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, लिंक टू पॉलिसी कमिटमेंट। तो चीजें अलाइन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से निकले यहाँ चले गए, वहां से यहाँ भागे। लिंक होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कटा खोल दिया और मैं इसको ऐसे बंद करूंगा। कंपेयरिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, अब दोनों चीजें डिफरेंट है, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी थी कि ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स में फर्क क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू रिड्यूस एनर्जी यूजेज, वी वांट टू रिड्यूस एनर्जी यूजेज, ओके। उसके लिए अब टारगेट क्या है? रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 10% इन 2001, रिड्यूस नेचुरल गैस यूज बाय 15% 2001। तो आपने क्या किया कि अब ये आपका ऑब्जेक्टिव था, बड़ा सादा सा, कि हम भाई इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेंगे। अब उसका टारगेट आपने सेट कर दिया कि मैंने इतनी 10% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा। वो कैसे आप कम यूज करेंगे? आप लाइटें कम करेंगे, डे लाइट को ज्यादा यूज करेंगे, आप अपना जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां से नहीं पकड़ेंगे, तो ये आपको वहां पे पता चलेगा। रिड्यूस यूजेज ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, eliminate use of CFC by 2002 or reduce the use of high VOCs पेंट्स बाय 25%। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम केमिकल कम से कम यूज करेंगे। फिर आपने यहाँ पर आके देख लिया कि भाई हमने जो है ना 2002 में CFC जो थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए थे। हमने कहा भाई नहीं, हम नहीं काम करते इनके साथ, ये खतरनाक चीजें हैं। और फिर आप चले गए जनाब, नेक्स्ट आपने चेक किया कि हम VOCs पेंट जो हैं उनके ऊपर भी काम नहीं करेंगे, ये भी हमें वारा नहीं खाते। अगली चीज है इम्प्रूव एम्प्लॉयज अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। आपने लोगों को समझाना है कि लोगों को पता चले कि यार एनवायरनमेंट के इश्यूज भी बहुत सीरियस होते हैं। तो उसके लिए आपका टारगेट क्या है कि होल्ड मंथली अवेयरनेस ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेन 100% ऑफ एम्प्लॉयज बाय एंड ऑफ ईयर। तो आपने टारगेट सेट किया कि बंदों को अगर अवेयर करना है तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और साल के एंड तक सारे बंदे कवर भी होने चाहिए। उसके बाद है इम्प्रूव कंप्लायंस विद वेस्ट वाटर डिस्चार्ज परमिट लिमिट्स। आप हर जो लैंड है उसका एक सर्टन लिमिट होती है कि आप कितना डिस्चार्ज कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो उसके ऊपर आ गया 0% लिमिट वायलेशंस बाय एंड ऑफ 2001। तो आपने क्या किया कि बना दिया कि हम यहाँ तक ऐसा कर लेंगे। तो जब प्रोग्राम पे बात आ गई, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, टारगेट सेट कर दिए, अब हम आ गए हैं प्रोग्राम पर। प्रोग्राम क्या कहता है कि टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस योर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम शुड डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अचीविंग गोल्स, हु विल डू इट, भाई कौन करेगा। द मीन्स फॉर अचीविंग गोल्स, कैसे करेगा, हाउ विल दे डू इट, हाउ विल डू इट दे डू इट, वो कैसे करेंगे। नहीं, आपने पहले बताना है कौन करेगा, देन हाउ विल दे डू इट, वो कैसे करेंगे। द टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग दोज गोल्स, और ये कब हो जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। हिंट्स आ जाती हैं। बिल्ड ऑन द प्लान एंड प्रोग्राम्स यू हैव नाउ फॉर कंप्लायंस, हेल्थ एंड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्वॉल्व योर एम्प्लॉइज, सिर्फ अकेले में बात ना करें, लोगों को एंगेज करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, जो भी कर रहे हैं उनकी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों को एंगेज करें, उनको बताएं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। रीएवैल्यूएट योर एक्शन प्लान, अपना एक्शन प्लान आपके पास जो है इसको रीवैल्यूएट करके देख लें कि हमने जो सोचा था, जो करने जा रहे हैं वही कर रहे हैं या कुछ और तो नहीं कर रहे। वो दो लोग फ्रिज उठा के ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो एक नीचे को खींच रहा था, एक ऊपर को खींच रहा था। 2 घंटे बाद आके कहते हैं फ्रिज बहुत वजनी है। असल में प्रॉब्लम था वो अलाइन ही नहीं थे, एक ऊपर खींचता रहा, एक नीचे खींचता रहा, किसी को पता ही नहीं था फ्रिज कहाँ लेके जानी है। तो रीवैल्यूएट कर लें। कीप इट सिंपल, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने कॉम्प्लेक्स किस्म का प्लान और कुछ कुछ बना के रख दें जिसका फायदा ही ना हो। There may be a real opportunities here. Coordinating your environmental program with your overall plan and strategies may position your organization to exploit some significant cost saving opportunities. तो ऐसा है कि सबको कंप्लायंस इकट्ठा करके देखें। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सिर्फ कह रहा था कि मेरा काम सर्टिफिकेट लेना, मैंने ले दी। दूसरा कहता है जी मेरा काम था SOPs बनाना, मैंने बना दी। तीसरा कहता है जी मेरा काम है बस ट्रेनिंग देना, मैं अपना ही काम करूंगा। इन सबको इकट्ठे होकर काम करें तो फिर फायदा होगा। ये एक फॉर्म का आपको सैंपल दिया था कि अगर आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाने जाते हैं तो आपका फॉर्म ऐसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइन योर रिसोर्सेज टू सक्सीड। सो रिसोर्सेज इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपको ये सब चीजें सीधी पदी करनी पड़ेंगी।
For an EMS to be effective, roles and responsibilities must be clearly defined. The commitment of all employees is needed. टॉप मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। अगर आपने बड़े अच्छा सब कुछ कर लिया, अगर मैनेजमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपको रिसोर्स नहीं देती, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आ गया जी फंक्शंस कैसे सपोर्ट करते हैं। परचेजर जो है वो ऐसी चीज़ें लेके जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ह्यूमन रिसोर्स ऐसा हो जिसको आप लोग समझा बुझा के बता सकें या रियलाइज करवाएं कि कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर वेरियस ईएमएस रोल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस रहे, जनरेटर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास साइडों पे लगे हैं, अगर जनरेटर का इंजन ठीक नहीं होगा तो वो इसकी एमिशन जो निकल रही है वो खराब होगी, इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करेगा। तो चीज़ों को मेंटेन करके रखें। फाइनेंस लाजमी होना चाहिए, आपको डेफिनेट टाइम ऑन टाइम मिलेगा तो आपका काम चलता रहेगा। अगर आप फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो मसले बन जाएंगे। आपको कंसिडर इंजीनियरिंग पे जाना है, आपको मतलब इनोवेशन के साथ रहना है। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट आपको किसी भी सूरत में चाहिए होती है। विदाउट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट यू कैन नॉट गेट टू द योर डेस्टिनेशन। क्वालिटी बहुत जरूरी है, सिर्फ काम नहीं करना, काम को अच्छे से करना होता है। सपोर्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ऑफ एफर्ट्स। सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है। और लाइन वर्कर्स प्रोवाइड फर्स्ट एंड नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेशंस। सपोर्ट ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज। ओके जी, ट्रेनिंग अवेयरनेस और कॉम्पिटेंसी। तो उसने कहा टू एक्सीलेंट रीजंस फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आर एंड यू योर ईएमएस। एवरी एम्प्लॉय कैन हैव पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि उसने कहा जी कि दो खास किस्म की वजूहत हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सबसे पहले ये कि हर बंदा अगर जिसको कुछ आपने पढ़ाया है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर कर सकता होगा। एनी एम्प्लॉय कैन हैव गुड आइडिया अबाउट हाउ टू इम्प्रूव एनवायरमेंट मैनेजमेंट एफर्ट। तो हो सकता है किसी के पास वो आइडिया हो जो आपके पास नहीं है। जैसे एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी ना, उसके डब्बे में से खाली पैकेट निकल आया था। वो बड़े परेशान थे कि यार ये क्या हुआ, उनकी रेपुटेशन स्टेक पे है। अब वो बड़े कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के इंजीनियर इकट्ठे हो गए कि हम इसको ऐसे टैकल करेंगे। पर एक सादा आदमी बैठा, उसने कहा जी जरूरत ही नहीं है, जहाँ से वो बिस्किट निकल के डब्बे में जा रहे होते हैं वहां पे एक पंखा लगा देते हैं। सिंपल सोल्यूशन, पंखे की हवा से खाली पैकेट बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। सो क्या है कि एनी एम्प्लॉय कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एफर्ट्स। रीजन फॉर ट्रेनिंग क्या है, लोगों को मोटिवेशन होती है, उनको अवेयरनेस मिलती है, उनकी कमिटमेंट ले सकते हैं, उनकी स्किल्स बेहतर होती हैं, वो कंप्लायंस की तरफ फोकस रहेंगे, मतलब वायलेशन नहीं करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। की स्टेप्स इन डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का शौक पैदा हो जाता है किसी वजह से, अच्छी बात है। तो देन असेस, उसे कहते हैं ट्रेनिंग नीड, टीएनए कहते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है। असेस ट्रेनिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आप ट्रेनिंग से निकालना क्या चाहते हैं, डिफाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्ट सूटेबल मेथड्स एंड मटेरियल्स, प्रिपेयर ट्रेनिंग प्लान्स, हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ विल कंडक्ट द ट्रेनिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग कर दें। देन ट्रैक ट्रेनिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, यानी उनके अटेंडेंस शीट्स, पिक्चर्स, मटेरियल्स को संभाल के रखें। एवेल्यूएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, देखें को फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। फिर इंप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर कुछ जरूरत है तो उसको इंप्रूव कर लें। रिसोर्सेज आपके इंटरनल ट्रेनर हो सकते हैं, आप कंसल्टेंट ले सकते हैं, कम्युनिटी से कोलीग को बुलाया जाए, कम्युनिटी कॉलेजेस हो सकते हैं, वेंडर्स को आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब हम जो बाकी ट्रेनिंग इन हाउस करवा लेते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की भी, डिफेंसिव ड्राइविंग की भी, मगर जब वर्क एट हाइट और रेस्क्यू की बात आती है तो हम थर्ड पार्टी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। कस्टमर से सपोर्ट ले सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड बिजनेस एसोसिएशंस वगैरह आपको सपोर्ट कर सकती हैं। सेल्फ स्टडी और स्टडी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है व्हेन ट्रेनिंग माइट बी नीडेड। अगर कोई बंदा, कब आपको पता चलेगा इसको ट्रेनिंग करवानी है, अगर कोई आप नया बंदा रखते हैं। व्हेन न्यू एम्प्लॉइज हायर्ड, एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू अ न्यू जॉब। या तो आपने बंदा नया ढूंढ लिया या बंदे को काम नया दे दिया, तो दोनों सूरतों में इसको ट्रेनिंग करवाएं। इंडिविजुअल डज नॉट फॉलो प्रोसीजर्स, अगर उसे लगता है कि उसे ट्रेनिंग तो दी थी पर वो काम नहीं कर रहा, मतलब ट्रेनिंग में इफेक्टिवनेस नहीं है, उसको रिफ्रेशर की जरूरत है। प्रोसीजर्स आर चेंज, कोई चेंज आ गया, न्यू प्रोसेस मटेरियल और इक्विपमेंट इज इंट्रोड्यूस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया प्लांट आ गया। कंपनी चेंजेस ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स, कंपनी ने रुख ही बदल दिया, भाई हम पहले ये करे थे अब हम ऐसा नहीं करेंगे। न्यू रेगुलेशंस अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, कोई नया कानून गवर्नमेंट ने बना दिया। जॉब परफॉर्मेंस मस्ट बी इम्प्रूव्ड, अगर आपका दिल करता है कि बंदे ज्यादा अच्छा काम करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इफेक्टिव एनवायरनमेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है, वरना रौला खत्म नहीं होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल हेल्प यू मोटिवेट योर वर्कफोर्स। आप उनको बताते रहें कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये कर रहे हैं। गेन एक्सेप्टेंस फॉर योर प्लान एंड एफर्ट्स, अगर वो उसके साथ राजी हैं ठीक है, वरना उनकी राय लें और उसमें चेंज कर दें। एक्सप्लेन योर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड ईएमएस एंड हाउ दे रिलेट टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विजन। Ensure understanding of roles and expectations, demonstrate management commitment, monitor and evaluate performance, and identify potential system improvements. तो अब आपके पास दो मेथड्स हैं। इंटरनल मेथड है इसको कम्युनिकेट करने का,
और एक्सटर्नल मेथड है। इंटरनल के अंदर आप न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर कुछ फ्लोट कर दें, स्टेट में स्टाफ मीटिंग कर दें। इसी तरह एक्सटर्नल के ऊपर आप ओपन हाउस कोई मतलब सेमिनार रख दें, फोकस और एडवाइजरी ग्रुप्स पे चले जाएं, वेबसाइट पे कुछ लिख के भेज दें, प्रेस रिलीज कर दें। तो ये आपके पास दोनों मेथड्स मौजूद हैं, आप इनके जरिए इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास आ गया है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, हायरार्की ऑफ ईएमएस डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले बनती है पॉलिसी, पॉलिसी के बाद आती है ईएमएस मैनुअल की बारी, उसके बाद आते हैं उस मैनुअल के अंदर प्रोसीजर्स, और फिर आते हैं आपके फॉर्म्स, ड्राइंग्स और ईटीसी। तो ये आपका मॉडल है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ईएमएस डॉक्यूमेंटेशन, कंसीडर द फॉलोइंग। जब आप मतलब जो ईएमएस के डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ होता है, तो आपको ये चीजें ख्याल रखनी है। योर एनवायरमेंटल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे मैंने जब आईडीएफ की रिपोर्ट लिखी है, तो उसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने लिखी थी, उसका मुझे वो रिपोर्ट लिख के समझ आया कि प्रॉब्लम क्या था। उसका एचएससी मैनेजर जो था, वो एचआर डायरेक्टर को रिपोर्टिंग था, मारा गया बेचारा। अब एचआर वाले को कौन समझाएगा कि एचएससी क्या होती है, वो तो कभी नहीं मानेगा। तो जो ईएचएस का जो आपकी रिपोर्टिंग है ना, या एनवायरनमेंट की है, उसकी एक डायरेक्टर लेवल पे अवेलेबिलिटी जरूरी होती है, ताकि हायर लेवल पे, सीईओ लेवल पे जो आपकी वॉइस है, वो डायरेक्टली जाए और आपको वहां से सपोर्ट मिल जाए। अब एचआर वाले को एचएससी पढ़ाने के लिए तो मुझे पास इतना टाइम नहीं हो सकता। तो खैर, ये आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, कि किस स्ट्रक्चर का बंदा क्या। अब वो वैसे तो एचआर डायरेक्टर था, मगर वो देख एचएससी भी रहा था, ये नया पंगा था। एनी हाउ, A description of summary of how your organization satisfies EMS requirements, आप उसके समराइज करते हैं। सिस्टम लेवल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे, रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। एक्टिविटीज और प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोसीजर के काम कैसे करने हैं, इसको हम एसओपी भी कहते हैं। अदर ईएमएस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होगा, ट्रेनिंग कौन कौन सी चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे हो सकता है, सुजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल रहता है कि वो इशू कौन करेगा, उसका रिवीजन डेट उस पर लिखी होनी चाहिए, इफेक्टिव डेट कब तक है, कब तक इंप्लीमेंट रहेगा, उसकी अप्रूवल किसने की थी, रिवीजन नंबर यानी कितने दफ़ा वो रिवीजन हो चुकी है, डॉक्यूमेंट का अपना नंबर क्या है ताकि उसे ट्रेस करने में आसानी हो, कॉपी नंबर और क्रॉस रेफरेंस भी मिल जाएगा। So to ensure that everyone is working with the proper EMS documents, your organization should have a procedure that describe how such documents are controlled. So first of all, you need to implementation of these procedures should ensure that EMS documents can be located. We know where to find them. ऐसा नहीं है कि किसी सेफ में डाल दिए थे, नहीं, पता मुझे एक्चुअली कि ईएमएस रिलेटेड डॉक्यूमेंट कहाँ हैं। दे आर पीरियडिकली रिव्यूड, ऐसा नहीं था कि बस सर्टिफिकेट हुई तो सेफ में बंद कर दिए थे। उनको हम क्वार्टरली बैठ के या बाई एनुअली या 6 महीने के बाद, 2 क्वार्टर के बाद देखते हैं। वी चेक टू मेक श्योर दे आर स्टिल वैलिड, करंट वर्जन आर अवेलेबल वेयर नीडेड, वी मेक श्योर द राइट पीपल हैव एक्सेस टू देम। मैंने कि ऐसा नहीं कि आपने बना के रख दी, जिनके काम के थे उनको पता ही नहीं चला क्या बनाया था। obsolete documents are removed, people don't use the wrong document by mistake। अगर आपने कुछ चेंज कर दिया है, इसको अपडेट कर दिया, तो पुराने वाले को डिस्कार्ड कर दें, वो भी साथ ही ना पड़ा रहे कि बंदे को भुलेखा लग जाए कहाँ फंस गया। व्हाट ईएमएस डॉक्यूमेंट शुड बी कंट्रोल्ड, तो जी आपके पास सबसे पहले आपकी पॉलिसी कंट्रोल होनी चाहिए। मैं रिसेंटली एक एसएमए में बैठा था, हमारे पास एक टर्म यूज होती है सप्लायर मैच्योरिटी असेसमेंट, एसएमए होता है। तो उसमें अंदर वो बंदा पॉलिसी लेके आया, ना उस पॉलिसी पे कोई डेट, ना कोई साइन, ना कोई रिवीजन नंबर। और मैंने कहा ये क्या लेके आ गए हो, उसका तो पता ही नहीं है ना किसने कब क्या लिख दिया। कहीं से भी गूगल से 4 लाइनें उठा के डाल के ले आएंगे तो वो पॉलिसी थोड़ी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स आपके क्लियर होने चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है कि ये भाईजान डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है और कंट्रोल्ड भी है। ऑपरेशनल कंट्रोल पे बात आ गई, अब डॉक्यूमेंट से हम निकले हैं आगे। वो कहते हैं टू इंश्योर दैट यू सेटिस्फाई द कमिटमेंट इन योर एनवायरमेंट पॉलिसी, सर्टेन ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज मस्ट बी कंट्रोल्ड। जब आपने बड़ा अच्छा किया, पॉलिसियां बनाई, डॉक्यूमेंट्स बनाए, कम्युनिकेशन की, ट्रेनिंग नीड्स भी पकड़ी, पैसे लगा दिए, अब बात यही है ऑपरेशनल कंट्रोल की। तो आपको देखना है कि पॉलिसी क्या जो से कोई काम कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं कर रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अलाइन है। तो जो कुछ आपने सेट किया है इन 4 डब्बों के अंदर, वो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर चीजें चल रही हैं, या आपने वो हाथ छोड़ दिया, बस डॉक्यूमेंट लिखे थे अच्छे से, उसके बाद कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन दैट माइट रिक्वायर ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, अगर आपने मतलब वेस्ट आपका जनरेट होता है, मतलब एफ्लुएंट भी हो सकते हैं, कोई वो गता भी हो सकता है इवन, बट अगर वो वेस्ट होता है तो आपका कंट्रोल क्या, हॉस्पिटल है तो वहाँ से वो बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं, सिरिंजेस हो सकती हैं, शार्प जो हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो सकती हैं। तो क्या कर रहे हैं उनके साथ, अप्रूवल ऑफ न्यू केमिकल्स, अगर आप ऑपरेशन में कुछ नया केमिकल डाल रहे हैं तो भाई उसकी अप्रूवल जरूरी है।
बाकी ये सब चीज़ें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लेटिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब आपको देखना है। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं चलो इस पर बात करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा का प्लान तैयार किया है, मगर आपने जब कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्ड किया है उसको कुछ पूछा ही नहीं, ना उसको देखा और ना उसके बाद उसकी सर्विलेंस की, तो फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला प्रोग्राम हो जाएगा। एनी हाउ, ये एक चार्ट है, टेबल है, इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके आप, ये आपको मददगार हो सकता है, अगर किसी को जरूरत है तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। Factors that could affect the need for documented procedures: risk of activities, complexity of activities, degree of supervision and skills training of workers। ये सब फैक्टर्स जो है ना, ये असर डालते हैं कि भाईजान डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर का क्या हालात है। Emergency preparedness and response minimize the impact of uncontrolled events। अगर आप तैयार हैं, देखें आप बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं, बट एनीथिंग कैन गोज रॉन्ग, कुछ भी गलत हो सकता है। तो आपको इमरजेंसी प्रिपेयर करने की जरूरत है कि जब कुछ गलत होगा, देन व्हाट विल यू डू, हु विल डू व्हाट, वी नो, वी नीड टू specifies these kind of things. So an effective emergency preparedness and response program should include provision for ये चीजें, assessing the potential for accidents and emergencies। लाइक अगर मेरे पास एक स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर मैंने फ्यूल स्टोर किया हुआ 50,000 लीटर, तो अब मुझे उसके सोचना भी चाहिए ना कि अगर किसी वजह से ये स्पिल होता है तो क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। मैंने एक उसके ऊपर जो था ना, ऑयल टर्मिनल पे काम किया था, तो उसके अंदर क्या था, स्टोरेज टैंक्स के ऊपर ना हमने मैं एक दीवार उसकी सराउंडिंग बनाई थी, उसे कहते हैं कंटेनर, हाँ कंटेनिंग वॉल कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि वो अगर वो स्पिल कर जाएगा तो उन्होंने इतना एरिया जो था उसकी साइड में खड़ा किया। बंडवाल भी कहते हैं सर उसको। जी क्या कहते हैं? बंडवाल। हाँ बंड वाल भी शायद कहते होंगे, फाइन। तो वो इसीलिए बनाई जाती है कि अगर समथिंग्स गो रॉन्ग, किसी भी वजह से वो ऑयल जो है या फ्यूल स्पिल होता है, तो वो अंदर कंटेन रहेगा, वहां से बाहर नहीं फैलेगा और वहां से उसे काबू किया जाएगा। प्लान्स प्रोसीजर्स, यार मुझे अच्छा लगा आप लोग जाग रहे हैं, थैंक यू। प्लान्स प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स, कि भाई कौन देखेगा, क्या देखेगा, कैसे देखेगा, ये नहीं है कि वहां पे कुछ हो गया और सोचने करना किसने था। मैं जब अपनी टीमों को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर टीम लीड की जिम्मेदारी है सबको बताना कि यार इमरजेंसी होगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, और साथ में ये भी बताना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये नहीं कहना कि इसने ही करना था, तुम लोग भी कुछ कर लेना। तो वहां पे पता होना चाहिए कि कौन क्या करेगा। पीरियोडिक टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जैसे हम फायर ड्रिल्स करते हैं या मेडिकल इमरजेंसी को हम की ड्रिल्स करते हैं, तो वो इसीलिए की जाती हैं। मिटिगेटिंग इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद दीज इंसिडेंट्स के, उसके बाद जब हम मिटिगेट करेंगे फिर क्या इम्पैक्ट्स होंगे। जैसे थोड़ा सा ना टेक्निकल काम है, ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है, कि आग लग गई तो ये तो आपने सोच लिया कि आग को पानी से बुझा देंगे, मगर उस आग को बुझाने में जो आपने पानी यूज किया है, उस पानी का क्या करेंगे, वो पानी कितना डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को। अगर वहां पर किसी केमिकल स्टोरेज में आग लगी थी और आपने उसको पानी डाल डाल के बुझा तो दिया, मगर वो जो आपने 2 लाख लीटर पानी बहा दिया है, वो कहाँ गया, वो किस ड्रेन में गया, किस वाटर स्ट्रीम में गया, जमीन में पेनिट्रेट हुआ, उसके साथ क्या हुआ, तो ये भी सोचना पड़ता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से मिल सकती है, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट से मिलेगी, प्लान लेआउट से मिल सकती है, ये सब चीज़ें आपके वहाँ पे मौजूद होती हैं, इनको देख लिया करें, कभी कभी अच्छे होते हैं। चेकलिस्ट फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान। तो क्या हमें ये एक चेकलिस्ट है नॉर्मल दी गई कि आप देखें पोटेंशियल इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं, हैजर्ड मटेरियल कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किन लोगों की हैं, क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, लोकल इमरजेंसी से अगर आपको सपोर्ट लेनी है तो उसके कॉन्टैक्ट कौन करेगा, किससे कॉन्टैक्ट करेगा, उनका रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, ये भी देखना पड़ेगा। प्रोसीजर्स क्या हैं, लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स इक्विपमेंट, यानी कि आपने क्या किया, फायर सिलेंडर, ऐसा हुआ मेरे साथ, हम एक हमारी कोर साइट थी, MSCs होती हैं टेलीकॉम में, उसके ऊपर फायर ड्रिल करने चले गए, सिलेंडर के ऊपर गेज तो बड़ी अच्छी लगी हुई थी, मगर जब हमने आग लगा के उसको चलाना शुरू किया तो वो चला ही नहीं। तो मेंटेनेंस जरूरी हमारे यहाँ उसके बाद प्रोसीजर्स हैं, उसकी क्वार्टरली इंस्पेक्शन हो रही होती है उनकी, एनी हाउ। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग ऑफ पर्सनल इंक्लूडिंग द ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आपने बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है मगर टीम की तैयारी नहीं कराई, उनको पता नहीं जो बला लगी हुई है इसको चलाना कैसे है, तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ एक ऐसा एक वाकया हमने किसी गांव में सुना था कि उनके घर पे गाड़ी खड़ी हुई थी, बंदा बीमार हो गया जिसने गाड़ी चलानी आती थी, और घर में और कोई बंदा नहीं था जिसको गाड़ी चलानी आती हो, तो फायदा क्या, वो बंदा पड़ा रहा वहां पर। ठीक है, तो क्या क्या आपने वो बंदा बीमार होने से पहले इसको ले जाने वालों का भी ख्याल करना है, अगर आपने सिस्टम लगा दिया, गाड़ी घर पे खड़ी की है, तो चलाने वाला भी होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ अलार्म्स, उसको टेस्ट करते रहें, और एवैक्यूएशन के लिए इमरजेंसी ड्रिल्स हम करते रहते हैं।
मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट पे बात आ गई, असेसिंग हाउ वेल द सिस्टम इज परफॉर्मिंग। तो आप चेक करें कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, अगर कुछ इश्यूज जा रहे हैं तो उनका रूट कॉजेज क्या हैं, कंप्लायंस के साथ हम कैसे गुजर रहे हैं, हमारा लीगल को फटा तो नहीं जा रहा, रोज कोई छापा तो नहीं पड़ जाता, रोज कोई नोटिस तो नहीं आ रहा, हमें अदालतों में घसीटा तो नहीं जा रहा। आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग करेक्टिव एक्शंस, अगर मतलब करेक्टिव एक्शंस जो होते हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं और इसके लिए रूट कॉज एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी वर्क प्लेस पे ऑयल स्पिलिज था, वहां से एक बंदा गिरा स्लिप होकर, उसकी टांग टूट गई, तो अब इसका इमीडिएट कॉज क्या है जी? वो जी तेल गिरा हुआ था। तो अब इसका करेक्शन करेक्शन क्या है जी? वो तेल साफ करना चाहिए। मगर मेरे नहीं, एक कोई सेफ्टी प्रोफेशनल ऐसा नहीं कर सकता। वो सोचेगा तेल गिरा क्यों था? इसलिए गिरा कि ढक्कन लूज था ड्राम का। ढक्कन क्यों लूज था? वो जो उस ड्राम में से तेल लेने आता है वो ढक्कन से ही बंद नहीं करके जाता। वो ढक्कन से ही बंद करके क्यों नहीं जाता? प्रॉब्लम क्या है जी कि उसको जिस असेंबली लाइन पे वो खड़ा है वहां से वो ऑयल लेने आता है, वहां से उसको 30 सेकंड का ही विंडो होती है जिसमें उसने आके वापस जाना होता है। तो आप ऑयल को 100 दफा सही करते रहे, जब तक आप उसके वो 30 सेकंड वाली विंडो को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो करेक्टिव एक्शन वो होता है कि जो दोबारा इस प्रॉब्लम को पैदा नहीं होने देगा। तो करेक्टिव एक्शन उस जो केस मैंने कहा है उसमें ये है कि उस बंदे को 30 की जगह 45 सेकंड दे दें ताकि वो ढक्कन बंद करके जाए, ऑयल स्पिलेज बंद हो जाए, साफ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड एनी हो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये ऐसी होती है जैसे अगर आप 20 साल पहले की फ्रिज पकड़ें तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी, मगर अब जो फ्रिज बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करती है, ज्यादा देर चीजों को ठंडा रखती है। तो क्या हो गया? परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है और एफिशिएंसी ज्यादा हो गई है। इन शॉर्ट, मॉनिटरिंग हेल्प्स यू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन बेटर। डेफिनेटली एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्टिव मेजरमेंट्स का सिंपल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये नहीं कि आज देखिए दोबारा 2 साल देखेंगे नहीं, देखते रहना चाहिए। ऑनगोइंग होना चाहिए। प्रोड्यूस रिलायबल डाटा। डाटा वो होना चाहिए जो सिर्फ दिखाने के लिए ना, ऑडिट के लिए तो डॉक्यूमेंट और पता नहीं क्या कुछ लोग पकड़ के ले आते हैं, बट एक्चुअल में तो सत्यानाश करके बैठे होते हैं। और कम्युनिकेट रिजल्ट्स, लोगों को बताएंगे हमने ये किया था और ये रिजल्ट है। ये आपका एक मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए आपको एक आपको फॉर्म की तस्वीर दे दी है कि आप इसको इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। लिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस टू ऑपरेशनल कंट्रोल्स, वन एग्जांपल ये आपके सामने खड़ी हुई है। अगर किसी को तस्वीर लेनी है तो वो ले सकता है 2 सेकंड में। मैं पानी का एक सिप ले लूं। अजान हो रही, सॉरी, हम 1 मिनट और रुकेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एमएस परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है जी? किसी को पता है ये वीओसी क्या होते हैं? वीओसी जो होते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो गैसेस की सूरत में निकलते हैं। तो ये एग्जांपल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? एक तो बता दीजिएगा। यस सर। तो किसने कहा जी एग्जांपल्स ऑफ ईएमएस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या कि पाउंड्स ऑफ वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो गैसेस की सूरत में निकलते हैं, वो कितने हमने प्रोड्यूस किए? पाउंड्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट जनरेटेड पर ईयर, हमने एक साल में कितना वजन का हैजर्डस वेस्ट जो है वो जनरेट कर दिया। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंप्लीटिंग एनवायरमेंट ट्रेनिंग्स, कितने लोगों को ट्रेनिंग हमने दिलवा दी। ये आपको पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअल में परफॉर्मेंस पे कहाँ खड़े हैं। और एवरेज टाइम ऑफ रिजॉल्विंग नॉन कंफॉर्मिटीज, अगर कोई एनसी आई थी वो रिजॉल्व हुई, अगर हुई तो कितना हुई, ऐसा तो नहीं है कि रो रो के अगले साल हुई। एनर्जी यूज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट रिसाइकल रीयूज, क्या आपने कितना जो वेस्ट था उसको रीयूज कर लिया। ओके, नॉन कन्फर्मेंसीज एंड करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस जिसे हम कैपा बोलते हैं।
fixing EMS problems and avoiding them in the future. ठीक है, नॉन कन्फर्मेंसीज मींस सिस्टम डज नॉट मीट द ईएमएस क्राइटेरिया। हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया था मगर सिस्टम के अंदर जो काम हो रहा है वो उससे मीट नहीं कर रहा। और इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ईएमएस डिस्क्रिप्शन। आपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो लिखा था वो आपके ऑपरेशन में चीजें वैसी नहीं हो रही, तो वो क्या है, नॉन कन्फॉर्मेंस। ईएमएस नॉन कन्फॉर्मेंस एंड non-conformities and other system deficiencies such as legal non-compliance should be analyzed to detect pattern or trends। यानी पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कैसा रहा है और हर दफा कैसा आता है, उसमें आपस में क्या लिंकेज है, पीछे कोई रूट कॉज एक ही तो नहीं है जो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ बनी हुई है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स अलाउज यू टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। जैसे कि आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फटा पता करें कि मुसीबत कहाँ पर आई हुई है। इन्वेस्टिगेट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। सिर्फ ये ना देखते रहें कि जनाब तेल गिर रहा था, क्यों गिर रहा था उस तक जाएं। कम अप विद सोल्यूशन। सोल्यूशन ये नहीं है कि उसकी सफाई करते रहे, बंदा खड़ा कर दें साफ करें, नहीं, सफाई सोल्यूशन ये है कि वो बंदा जो तेल लेने आता है उसको बताएंगे यार ढक्कन बंद करके जाएगा, उसे टाइम दे दें। इम्प्लीमेंट सोल्यूशन, सिर्फ बता ना दें, इंश्योर करें उसे टाइम मिल गया है। डॉक्यूमेंट सोल्यूशन, लिखेंगे ये फटा था यहाँ पर हमने ऐसे किया। कम्युनिकेट सोल्यूशन, बाकियों को भी बताएंगे यहाँ पे इस वजह से ये फटा हो रहा था, तो बंदे पैनलाइज ना करें, सिस्टम आपका प्रोसेस उसको ठीक करें। क्योंकि 80% टाइम जो है ना, 80 टाइम्स प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर होता है, प्रोसेस में होता है। हम बंदे को एड्रेस करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रोसेस को एड्रेस करना चाहिए। एवेल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ सोल्यूशन, अब देख रहे हैं कि मैंने उसे 45 सेकंड दे दिए हैं, अब वो ढक्कन बंद करके जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो ना वो 45 सेकंड भी दे रही है, ढक्कन फिर नहीं बंद कर रहा, वो आपको चेक करना चाहिए। वाई डू एमएस प्रॉब्लम अकर्स, क्यों होती है भाई, क्यों फटा हो जाता है? टिपिकली कॉजेज इंक्लूड पुअर कम्युनिकेशन, हमने पॉलिसी बनाई थी किसी को बताया ही नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ, इसके अंदर भी जब ग्लोबल लेवल पे मीटिंग होती है तो बड़े बड़े ऐसे बैठे होते हैं उन्होंने कभी पॉलिसी पढ़ी नहीं होती। ये बड़ा दुख वाली बात है, बट इट इज व्हाट इट इज। फॉल्टी और मिसिंग प्रोसीजर्स होते हैं, इक्विपमेंट माल फंक्शन कर जाता है किसी वजह से, लैक ऑफ ट्रेनिंग, है बंदे को ट्रेनिंग नहीं करवाया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, फेलियर टू एनफोर्स रूल्स, करेक्टिव एक्शंस फेल टू एड्रेस रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो आखिरी वाला, ये वही बात है कि मैंने उसे 45 सेकंड तो दे दिए पर ढक्कन बंद उसने फिर भी नहीं किया, तो हो सकता है ढक्कन ही खराब हो, तो टाइम देने से के साथ उसका ढक्कन भी चेक कर लें फिर। ओके जी, सोर्स ऑफ चेंज क्या हो सकता है जी, कैसे हो सकते हैं? आप ऑडिट्स कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लोगों से सजेशन मांग सकते हैं या कोई और रिसोर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपको करेक्टिव एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू देखेगा कि जो आपने किया था वो ठीक था या नहीं ठीक था। रिकॉर्ड्स, एविडेंस दैट द ईएमएस इज वर्किंग एज इंटेंडेड, वो होते हैं रिकॉर्ड्स, कि जो आपने सोचा था हम वैसा ही कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड है। द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इज फेयरली सिंपल, यू शुड बी एबल टू डिमोन्स्ट्रेट दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द ईएमएस एज डिजाइन्ड। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, अगर एविडेंस नहीं तो इट मींस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स आगे यू माइट मेंटेन, आपको लीगल के जो जैसे एचएससी के अंदर लीगल रजिस्टर होता है, यहाँ पे लीगल रेगुलेटरी एंड अदर कोड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिजल्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, आप लिख, जैसे हम एचएससी के अंदर जो है ना रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। रिपोर्ट्स ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, वो दोनों में सेम ही रहते हैं। परमिट्स, लाइसेंस एंड अदर अप्रूवल्स, वो तकरीबन सेम ही रहेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सेम ही रहेगी, ट्रेनिंग रिकॉर्ड सेम रहेंगे, ईएमएस ऑडिट सेम ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाईजान ये को दिखाने के लिए रखे थे, अगर हैं तो फिर तो गुजारा चल जाएगा, और अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ईएमएस ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई भाई, ऑडिट पे आगे काम। ऑडिट आर वाइटल टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ऑडिट क्या करता है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करता है कि भाई चल क्या रहा था। So EMS audit a systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating evidence to determine whether on an organization's environmental management system conforms to the environmental management system audit criteria set by the organization, and for communication of the results of this process to management। शायद इस शेर में कह रहा है कि भाई ऑडिट ये बता होती है कि क्या जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमने लिखा था, जो कुछ ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन ने खुद, क्या उसके मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है, जो नतीजा निकलेगा वो मैनेजमेंट को जो हम बताएंगे वो ठीक ही चल रहा है, कि या हमने लिखा कुछ था, सोचा कुछ था और कर कुछ और ही रहे हैं। एनी हाउ, सो ऑर्डर प्रोसीजर शुड डिस्क्राइब कि ऑडिट का प्लान होना चाहिए, मतलब रेडीनेस होनी चाहिए ऑडिट के लिए। ऑडिट कभी भी स्पॉट नहीं हो सकता, स्पॉट चेक इंस्पेक्शन हो सकती है, ऑडिट के लिए रेडीनेस की जाती है।
फिर ऑडिट का स्कोप क्लियर होना चाहिए कि भाई किस किस एरिया का ऑडिट होगा। जैसे अगर हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो पूरा टेलीनॉर ऑडिट नहीं करते, उन्होंने कुछ सर्टन साइट्स का ऑडिट करवाया हुआ है कि हम इस साइट का ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्लियर होनी चाहिए, एनुअली होगी, बाई एनुअली होगी, क्वार्टरली होगी, वीकली, मैनुअली, वो आपका मसला है। ऑडिट मेथड क्या होगा, बंदा रिमोटली बैठ के डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वो साइट विजिट करेगा, वो दफ्तर में बैठ के डेस्कटॉप ऑडिट करेगा, वो लोगों के इंटरव्यूज करेगा या जो भी करेगा, सब क्लियर होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिट के अंदर कौन क्या करेगा भाई, एविडेंस कौन लेके आएगा, इंटरव्यूज के लिए बंदे कौन अलाइन करेगा, ऑडिटर को सपोर्ट कौन करेगा, वो बैठेगा कहाँ, उसको खाना कौन देगा, रिकॉर्ड कीपिंग भी जरूरी है। हु विल परफॉर्म द ऑडिट, ऑडिटर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ऑडिटर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेड्स ऑफ गुड ऑडिटर्स के अंदर होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, बायस नहीं होता, वो जानबूझ के किसी के कान नहीं खींचता, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, वो किसी भी तरफ इम्पार्शियल रहता है, टैक्टफुल होता है, उसे पता होता है वो क्या करने है, और अटेंटिव टू डिटेल्स, और उसे पता होता है क्या चेक करना है। मैंने आपको बताया ना कि वो एसएमए के अंदर मुझे एक दिन बैठा दिया उन्होंने, वो पूरा दिन एसएमए के अंदर वो बेचारे पुलिस ही डिफाइन नहीं कर सके, अगले दिन मैं नहीं बैठा, आधे घंटे में पास होकर चले गए उल्लू के बैठे। एनी हाउ, ईएमएस ऑडिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी तक। वो बता रहे हैं कि भाई जान पीरियड ऑफ ईएमएस ऑडिट क्या होगा, करेक्टिव एक्शन जो आएंगे उनके साथ क्या होगा, फिर मैनेजमेंट रिव्यू करके क्या देखेगी, फिर आपने ईएमएस एस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया, उसका ऑडिट किया, उसके करेक्टिव एक्शन निकले, मैनेजमेंट ने बैठ के देखा कि जो हमने साइकिल चलाया था वो चला या नहीं चला। एविडेंस आपको मिल जाएंगे इंटरव्यूज के साथ, आप लोगों के इंटरव्यू करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेंगे, आप खुद प्रैक्टिसेस को चेक करेंगे काम कैसा चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैनेजमेंट रिव्यू पे बात आ गई, क्लोजिंग एंड द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट लूप। देखें कुछ भी चीज, कोई भी लूप ओपन वी कैन नॉट लीव एनी लूप ओपन। लाइक मैंने बता दिया, देन व्हाट, आपने बता दिया फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो द की क्वेश्चन दैट अ मैनेजमेंट रिव्यू सीक्स टू आंसर, इज द सिस्टम वर्किंग, इज इट सुटेबल, एडुकेट एंड इफेक्टिव गिवन आवर नीड्स। तो क्या है कि हमने जो आइडेंटिफाई किया वो उसके बाद उससे को फायदा हुआ, हमने जिसको बताया उसने मान लिया, मानने के बाद उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस होगी, या बस ठीक है सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाले इम्प्लीमेंट कर दिया था, ऑडिट करने वाला ऑडिट करके चला गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीहाउ, इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ टू कंसीडर, ऑडिट के रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, इंटरनल सजेशन बॉक्स भी मिल जाते हैं, पर हमारे पाकिस्तानी सजेशन बॉक्स में भी पैसे डाल आते हैं। एनी हाउ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं, प्रोग्रेस और ऑन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर देख सकते हैं, ये तो क्वांटिफाई होते हैं ना, टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं इनकी शीट जो आप खोलते हैं पता चल जाता है क्या हो रहा है। अदर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, स्पिल्स और अदर इंसिडेंट्स को देखेंगे, न्यू और मॉडिफाइड लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस, कुछ नया खाता खोल दिया गवर्नमेंट ने, न्यू साइंटिफिक टेक्निकल डाटा और मटेरियल एंड प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या कोई नया स्टैंडर्ड मार्केट में आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। सो दिस इज इट, this is all from my side. If you have any question, it's forum is open for you, you can ask, I am here to answer them. Any question, any question? मेरी आवाज आ रही? Okay, thank you, take care, bye.